हेलो बच्चों, देखते हैं 8th स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वुड एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन? एप्पल, पैडी, पी एंड पोटैटो। सो आंसर इज पी, बिकॉज पी क्या है? इट इज द लेग्यूमिनस प्लांट and it contain the rhizobium bacteria in root nodules. So ये rhizobium bacteria क्या करेंगे? ये rhizobium bacteria will fix the nitrogen and thus it help in enriching the soil with nitrogen. Next, fish liver oil is rich in vitamin A, vitamin D, omega-3 fatty acids, all of these. So answer is all of this. The first oil well was drilled in USA, USSR, UK, India. So the first was in USA, that is in Pennsylvania. Coal burns with flame, only glow, both flame and glow, and none of these. So जो coal है that burns with only glow, there is no flame in the coal. The force between two charged bodies is called muscular force, gravitational force, magnetic force, electrostatic force. So the muscular force, the force which is utilized by the muscles of the body. Gravitational force, it is the force of attraction between two bodies. लाइक अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है. देन मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स विच ऑफ मैग्नेट विच अट्रैक्ट द आयरन, एंड द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. What kind of substance are known as lubricants? Increase the friction, decrease the friction, increase or decrease friction, none of these. So lubricants, actually lubricants are those material which will decrease the friction. It will help in functioning smoothly. Fluids are gases, liquids, gases and liquid, both, none of these. So fluid means gas and liquid both. Amount of nitrogen in the atmosphere is 58%, 68%, 78% or 88%, that is 78% nitrogen. Distinguish between pesticide and weedicides. So students, pesticides and weedicide. Pesticide means they are the chemicals which used to kill or repel the pest, like rats, insects, etc. Example of the pesticide is BHC, DDT. Weedicides. Now weeds are that the plants which are unwanted in the field. So weedicides are used to kill the weeds, or it help in removal of weeds. Example of weeds is 2,4-D. This is the example of weedicides. Next, what is inflammable substance? Inflammable
Students, inflammable substance means the substance which is having a very low ignition temperature and which can catch the fire very easily. The substance which can catch the fire easily due to its low ignition temperature such substances are known as inflammable substance. Example is petrol, kerosene, etc. Next, what is the range of audible frequency for humans? So students, audible frequency means this frequency can be heard by humans. So the range for the audible is 20 Hertz to 20,000 Hertz. What is the lubrication? Lubrication, it is the process where lubricants are used to decrease the friction. For example, we are using oil in this bicycle to run the bicycle smoothly. The process in which the lubricant is used to decrease the friction example, oil in engines are used to prevent from wear and tear. So students, lubricants क्या करते हैं? Lubricants, they make a film between two different objects which are continuously in the friction. Okay, so due to the presence of the thin film of the lubricant, what will happen? There is going to be decrease in the friction and so on. It will prevent the wear and tear. So this process is known as lubrication. What is the importance of leguminous plant? Leguminous plants, they are mostly used for the replenishment of the soil. Why they are used for the replenishment of the soil? Because leguminous plant contain the rhizobium bacteria which reside in the root nodules which helps in fixing the nitrogen. So students, जो leguminous plants होते हैं, their roots has the root nodules
their roots are swollen. Okay, in the root nodules there is living the rhizobium bacteria, which in return fix the nitrogen, and as it is fixing the nitrogen, therefore the soil became enriched in the nitrogen, so it became more fertile. That is why leguminous plants are improved. Write one use of CNG, bitumen and petroleum gas. CNG means compressed natural gas, and it is used in vehicles, bitumen, it is used in road surfacing, then petroleum gas, it is used as fuel, domestic fuel, LPG, and it is used as fuel in vehicles. CNG, it is compressed natural gas, it is used as a fuel in vehicles. Bitumen, it used for the surfacing of the road, and petroleum gas, it is used as a domestic fuel, that is LPG, that is liquefied petroleum gas. What is the difference between vaccine and antibiotic? So the first difference is that vaccine is used to prevent the disease and antibiotic is used to cure the disease. Second, vaccines are made from the organism itself causing the disease. And what is antibiotic? It is the chemical which is produced by one organism which has the ability to kill the other organism. Which has ability to kill other organism. Example, polio vaccine, and here example is penicillin, azithromycin. Okay, so vaccines made from the organism itself causing the disease. For example, polio, it is a disease. Okay, so to prevent the disease, what we'll do, we'll
take some part of the polio virus, make it inactive and then insert in the body, so it will able to produce the antibodies in front of the polio virus. Here in antibiotic, what is happening, that it is a chemical which is producing by an organism which is hindering the growth or kill the other organism. Example, that is penicillin, that was the first antibiotic, and another example is azithromycin. Next, what is irrigation? Right, three method of irrigation. So irrigation, it is the technique by which we water the field. Okay, we supply the water to the crops. That process is known as irrigation in agriculture. There are different methods. These are the modern methods and these are the traditional methods. Traditional method utilize more labor and more time. Here modern methods, it is a sprinkler system and drip irrigation. Modern method utilize less time and less energy. What is the atmospheric pressure? Explain your answer with the example. So the pressure which is exerted by the atmosphere, that is known as atmospheric pressure, and it is the normal force exerted per unit area of Earth's surface by the column of air above that surface, that is known as atmospheric pressure. Now what are the other example which shows the atmospheric pressure? If you see how we use the straw, okay, so here when we suck the air from the straw, what is happening here? Pressure is less, okay, pressure is less than the atmospheric pressure, and due to this the liquid gets in the straw. So this is the example of atmospheric pressure. Another example is the rubber sucker. Rubber sucker, what we are doing in the rubber sucker, that when we put that rubber sucker onto the wall, what is happening? Suppose this is the rubber sucker and this is the wall. So what we are doing, when we are pressing it, the air is coming out and it is creating the vacuum over here. So the pressure, atmospheric pressure from outside is there on the rubber sucker, so it just attached with the wall and it doesn't come out. So the process, the concept which is here, that is the atmospheric pressure. What is happening when we push the rubber sucker, what happened? The air which is here, that just came out and create the vacuum, as there is no air molecules are here, okay, there is vacuum. So what is happening? The atmospheric pressure is having the force on it, and that's why it is here. So these are the some example of for atmospheric pressure. Next, match the following: oxygen, kerosene, kerosene, third incomplete combustion of coal, fourth acid rain, and fifth white phosphorus. So oxygen, it is the supporter of combustion. Kerosene, that is the domestic fuel. Incomplete combustion of coal will produce the carbon monoxide. Acid rain can be produced by the nitrates, NO2 and SO2. White phosphorus shows the spontaneous combustion. So what is going to be our answer finally? That is, first is D, second is B, third is A, fourth is E, and last fifth is C. Okay, once D, second B, third A, fourth E, and fifth it is C. Next, explain the term frequency, time period, amplitude, ultrasonic and infrasonic sound. So what is frequency?
frequency, it is the number of oscillation in 1 second, that is frequency. Time period is time taken to complete one oscillation, that is time period. Amplitude, it is the maximum displacement of an object from its mean position it also responsible for loudness of sound. Next, ultrasonic. They are the sound which having the frequency above 20,000 hertz. Sound having frequency above 20,000 hertz. Infrasonic sound, it is the sound having frequency below 20 hertz. Okay, so what is frequency? It is the number of oscillation in 1 second. If we draw here the oscillation, so this is one oscillation complete, this is second oscillation. If there is 2 oscillation in 1 second, then what will be the frequency? Frequency is going to be 2, because the number of oscillation which is taking place in 1 second is 2. So that determines the number of frequency. Time period, time taken to complete one oscillation. For example, here it is the one oscillation and it is taking the time of 2 seconds. Then what is the time period? Time period is 2 seconds. Amplitude, the maximum displacement of an object. Now the maximum displacement of the object from mean position means this is its mean position. First oscillation is this and suppose second oscillation is this. So what this crest is determining? This crest is determining the amplitude of the sound. So this is the maximum displacement and it also determines the loudness of the sound. Explain the refining of petroleum. Refining means there is a complex mixture and we are separating the important components from that mixture, that is refining. The crude petroleum oil is complex mixture of solid, liquid and gaseous hydrocarbons. Hydrocarbons which contain carbon and hydrogen mainly. So before petroleum can be used for specific purpose, it has to be refined for purified. The process of separating crude petroleum oil into more useful fractions are called refining. So here this is the fractional distillation. What is happening? The components are getting separated on the basis of their boiling point. Here it is the
crude oil, it is getting heated, and according to the different boiling temperature, the substances are getting separated. For example, petroleum gas is getting separated at 40 degrees Celsius. Later on, when this gets separated, what happened then? Slowly, gradually, when temperature will increase, the other one will convert into the vapor according to its own boiling point, and so on. The different components will get separated in the fractioning column. This process is known as fractional distillation, which depend upon the boiling point of the components. What is the microorganisms? Explain the classification of microorganism with suitable example. Microorganism they are living organisms which cannot be seen by naked eyes, microscope is needed to see them. There are different classification for microorganism. They are bacteria, algae, fungi, protozoa, and virus. Now, virus is termed as differently because all these microorganisms, bacteria, algae, fungi, protozoa, they can grow as a free living also, but virus, it is the organism which can only and only multiply inside the host cell. It can only multiply inside the host cell. Outside it is inactive. Outside the host cell it will be inactive. Okay, so this is the difference between the virus and different microorganisms. Let's talk about the bacteria. Bacteria example is Lactobacillus, Streptococcus, bacteria can be found in different shape, that is like coccus, rod, vibrio, etc. Algae, these organisms contain chlorophyll. And they can perform photosynthesis. They can perform photosynthesis. Algae can be multicellular, also can be unicellular. Example of multicellular is Spirogyra, and example of unicellular is Volvox. Fungi, they are termed as non-green plants because they does not contain chlorophyll, but they have the cell wall. Example of the fungi is mushroom. Once again, mushroom is multicellular, and yeast, it is unicellular fungi. Protozoa, they are unicellulars, eukaryotes. Example, amoeba, euglena. They can be free living also, and they act as a parasite also. Next,
State and explain the different types of friction. So friction, it is the force that opposes the motion between any surface that are in contact. There are three different types of friction, that is static, sliding and rolling friction. Static friction acts on an object when the object are resting on a surface. For example, a book which is lying on the table, that is showing the static friction. Second, sliding friction, it is the friction that acts on a object when they are sliding over a surface. For example, here it is a box and we just slide on the surface to move this box from one place to another. So here the type of friction which is acquiring, that is sliding friction. Rolling friction, it is the friction that act on an object when they are rolling over a surface. For example, there is a cylinder and we are rolling this cylinder on the surface. Then the friction which is acting on the cylinder, that is going to be the rolling friction. Last, that is fluid friction, that acts on an object that are moving through a fluid. Fluid friction is a friction when somebody experiences the friction when a swimmer is swimming. Second, the resistance of the air. If we put anything from the above and that is coming downwards slowly, okay, so the resistance which is experienced by the object when it is falling from upwards to the downwards, that air resistance is known as the fluid friction. Fluid friction, that is exerted by liquid as well as gases. So I hope students you got all the solutions. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे पैटिक्स का सॉल्यूशन सेट नंबर 3 का। ठीक है, आपको क्या बोला है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में, y बी द रेसिप्रोकल, मतलब y जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, ऑफ रैशनल नंबर x का, मतलब y क्या हो गया बेटा 1/x। ठीक है, और आगे क्या बोला है बेटा, देन द रेसिप्रोकल ऑफ y, रेसिप्रोकल ऑफ y मतलब 1/y इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा 1/y की, तो y इधर आएगा तो x यहाँ पे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, तो हमारा 1/y क्या होगा, x होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ y विल बी x। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। तो अगर आप अल्फ़ाबेट्स देखोगे सारे 1 से लेके 26 तक, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं बेटा, तो टोटल अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक कितने होते हैं बेटा 26। उसमें वॉवेल्स कितने होते हैं, तो ए ई आई ओ यू कितने वॉवेल होते हैं बेटा 5 वॉवेल। कौन से 5 वॉवेल, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल इज इक्वल टू कितने वॉवेल है 5 और टोटल कितने हैं 36। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल कितना आएगा बेटा 5/26। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोला है बेटा, राम पुट सम बटन्स ऑन द टेबल। राम ने टेबल के ऊपर कुछ बटन्स रखे हुए हैं। देयर वर 4 ब्लू, कैसे बटन्स है बेटा, तो 4 ब्लू है, फिर 7 रेड है, उसके बाद 3 ब्लैक है एंड और आगे क्या बोला है बेटा, तो आगे बोला है 6 वाइट है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास है 4 ब्लू 3 ब्लैक, ठीक है 7 रेड एंड 6 वाइट बटन्स। तो अगर आप टोटल देखोगे तो कितने हो गए बेटा 10 और 10 20, तो 20 हो गए टोटल। आपको क्या पूछा है बेटा, तो ऑल ऑफ अ सडन अ कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। ऑल ऑफ अ सडन एक कैट ने टेबल के ऊपर जंप किया है
एंड नॉक्ड आउट वन बटन ऑन द फ्लोर, और एक बटन फ्लोर पे गिरा दिया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बटन ऑन द फ्लोर इज ब्लू. क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बटन फ्लोर पे गिरा है वो कौन सा है, ब्लू कलर का है. तो टोटल ब्लू आपके पास जो भी बटन्स है उसमें से ब्लू बटन कितने हैं, तो ब्लू बटन है बेटा आपके पास 4, और आपके पास टोटल कितने बटन्स है, तो टोटल बटन्स है आपके पास 20. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू बटन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बटन. तो क्या हो गया बेटा 4/20. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, 4 1 जार 4 5 जार. तो क्या आंसर आ रहा है बेटा 1/5. तो कौन सी चॉइस है बेटा 1/5, सी चॉइस. ठीक है, सी ऑप्शन. चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्या बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछी, √248 प्लस √52 प्लस √144. तो √144 ये होगा 12. ठीक है, अब अगर आप 12 प्लस 52 करोगे तो 52 प्लस 12 ये पूरा हो जाएगा 52 प्लस 12 64. तो हमारा क्वेश्चन हो गया √248 प्लस ये पूरा ऐड होके कितना हो गया 64. तो ये होगा √248 प्लस 64 का √8 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 248 और 8 कितना हुआ 256. ठीक है, अब 256 का स्क्वायर रूट कौन होता है, तो 256 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 16. ठीक है, तो रूट ऑफ 256 विच इज इक्वल टू 16. ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5. आपको क्या बोला है बेटा, आपको बोला है कि √4096 इज इक्वल टू 64. आपको बोला है कि √4096 की वैल्यू कितनी बेटा 64. तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, √4096 प्लस √40.96. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली यहाँ से अवेलेबल है बेटा कितनी 64, प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप, तो डेसिमल के बाद टेंस और 100 प्लेस है, तो 4096 का रूट अपॉन 100 का रूट. यहाँ पे आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के ये जो रूट है वो दोनों में डिवाइड कर सकते हो. तो ये होगा 64 प्लस √4096 अपॉन √100. तो ये होगा 64 प्लस ये होगा 64/100 का रूट होगा 10. ठीक है, तो ये होगा 64 प्लस 6.4. तो 64 और 6 70 और 4 तो क्या आएगा 70.4. ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन 70.4. ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. आपको बोला है 5x/3 - 4 इज इक्वल टू 2x/5. देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x - 7. आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा 2x - 7. पहले यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करके हम x की वैल्यू ढूंढने वाले हैं. कैसे, तो आपको 5x/3 - 4 इज इक्वल टू 2x/5 हुआ. ठीक है, इसको यहाँ पे ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, इसको यहाँ पे ला दो तो माइनस हो जाएगा. तो 5x/3 - 2x/5 इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो बेटा, LCM ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. 5 5 जार 25x माइनस 3 2 जार 6x अपॉन 3 5 जार 15 इज इक्वल टू 4. 25 माइनस 6 कितना होगा बेटा, तो 25 माइनस 6 होगा 19. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 19x/15 इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, ये 15 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू 15 4 ज़ा 60/19. आपको x की वैल्यू मिल चुकी है बेटा 60/19.
19, ठीक है। अब वैल्यू पूछिए 2x माइनस 7 की, तो 2 इंटू एक्स 60/19 माइनस 7, तो ये होगा 120/19 माइनस 7। तो अभी आपको करना है 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 होता है बेटा आपका 133, तो ये होगा 120 माइनस 133 अपॉन 19, ठीक है। तो ये आएगा 120 माइनस 133 माइनस 13 अपॉन 19। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? माइनस 13 अपॉन 19, बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एकदम इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट कर दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बोला है कि अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, अगर ये इक्वेशन है आपके पास तो आपके x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पूछा है फ्रैक्शन है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है कि या सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ले जाके माइनस करो, इसको यहाँ पे लाके प्लस करो, तो ये होगा 8x माइनस 17x इज इक्वल टू 25 माइनस 3, इधर आया तो प्लस 3, ठीक है। 8x माइनस 17x, तो 8 में से 17 माइनस होगा, तो ये होगा माइनस 9x इज इक्वल टू 25 प्लस 3 28। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी माइनस 28 अपॉन 9। आपको क्या मिली बेटा? x की वैल्यू माइनस 28 अपॉन 9। क्या माइनस 28 अपॉन 9 फ्रैक्शन है? नहीं, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, वो तो पार्ट ऑफ अ होल होता है। क्या ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर कभी भी अपॉन में नहीं हो सकता है। क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये एक रैशनल नंबर है। तो आपका जो ऑप्शन बन रहा है बेटा, वो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? सी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स कैसी है? इक्वल है। हुज इंटीरियर एंगल इज 135। आपको क्या बोला है बेटा? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितना दिया है? 135 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना दिया है? 135 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो है, बट वो फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हैं? जब आपको एक्सटीरियर एंगल पता हो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स का ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है बेटा नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर आप 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स ढूंढने के लिए एक्सटीरियर एंगल ढूंढने पर हमारे पास तो क्या है? इंटीरियर एंगल है। तो आप इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल ढूंढ सकते हो, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, दोनों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 135। तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया बेटा? तो आपका एक्सटीरियर एंगल आ चुका है 45 डिग्री, ठीक है। चलो अब नंबर ऑफ साइड्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स आपकी हो जाएगी 360 डिग्री अपॉन क्या है? 45, ठीक है। 45 90 और 9 4 ज़ा 36, तो 45 8 ज़ार, तो n कितना आ रहा है बेटा? 8। आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी मिल चुकी है बेटा? 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे MCQs फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में द कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर्स ऑफ वायर, ठीक है। क्या बोला है बेटा? 19/4 मीटर ऑफ वायर इज कि कितने रुपए लगते हैं? 171/2, ठीक है। 19/4 मीटर वायर के कितने रुपीस लगते हैं? 171/2, ठीक है। और क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर।
तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना होगा। तो अगर आप देखोगे बेटा यूनिटरी मेथड से तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 171/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 19/4। ठीक है, अब ये 19/4 जो है वो डिवीजन में है, आपको अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में लाना है तो आपको इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा ये हो जाएगा 171/2, ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आएगा ऊपर, ये डिवीजन से ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इनटू 19/4 का होगा 4/19। ठीक है, अभी इसको कट करते हैं, तो कट करोगे तो 2 2 4 हो रहा है, और क्या हो रहा है तो 19 9s are 171। ठीक है, तो ये बचा 9 इंटू 2। ठीक है, तो 9 2s कितना होता है 18। तो कितने रुपीज़ आ गया बेटा 18 रुपीज़। तो आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इस ₹18। ठीक है, आपके 1 मीटर वायर का कितना कॉस्टिंग बैठ रहा है बेटा 18 रुपीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि ऋत्विक ड्रॉज अ बॉल फ्रॉम अ बैग दैट कंटेन्स वाइट एंड येलो बॉल्स। अभी कुछ बॉल्स वाइट है, कुछ बॉल्स कैसे हैं बेटा वाइट है, और कुछ बॉल्स कैसे हैं बेटा येलो है। ठीक है, बैग के अंदर 2 टाइप के बॉल्स है, उसमें से कुछ बॉल्स वाइट है और कुछ बॉल्स कैसे हैं येलो है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वाइट बॉल इज 2/9। ठीक है, वाइट बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट का W कैपिटल लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना है बेटा 2/9। ठीक है, और क्या बोला है आपको, if the total number of balls in the bag is 36। ठीक है, total balls is equal to 36। तो आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। आपको क्या करना है बेटा येलो बॉल्स का जो नंबर है वो ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे, तो लेट हम W को एक इवेंट ले लेंगे, let W be an event that ball drawn is white। ठीक है, मैंने एक इवेंट ले लिया, क्या इवेंट ले लिया बेटा कि W जो है वो इवेंट है कि जो मैं बॉल ड्रॉ करने वाला हूँ वो कैसा है वाइट बॉल है। ठीक है, तो therefore probability of white ball will be equal to number of white balls upon total number of balls ठीक है, P of W probability of white balls equal to number of white balls upon total number of balls। चलो ये कितना है 2/9 is equal to नंबर ऑफ वाइट बॉल्स मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को x ले लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बेटा कितने टोटल बॉल्स है 36 बॉल्स है। ठीक है, तो 9 4s are 36। तो आपको x इक्वल टू कितना मिला 2 इंटू 4। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया 8। तो आपके पास जो वाइट बॉल्स है वो कितने हैं 8 है। ठीक है, अभी मैं वाइट बॉल्स के नंबर को x ले लेता हूँ और येलो को y ले लेता हूँ। ठीक है, तो वाइट नंबर के बॉल्स यानी कि x कितने हैं 8, बट दोनों मिला के टोटल बॉल कितने हैं बेटा 36। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टोटल बॉल्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, बट वाइट बॉल्स उसमें से x 8 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो आपका y कितना आ जाएगा 36 माइनस 8, तो y कितना आएगा बेटा 28। ठीक है, कितना बेटा आपको y मिलेगा 28। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 28, नंबर ऑफ येलो बॉल्स, वाइट बॉल्स प्लस येलो बॉल्स 36 है, वाइट बॉल्स 8 है, 8 प्लस वाई 36, तो y 36 माइनस 8, तो y कितना आ गया 28।
तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स आपको कितने मिल रहे हैं बेटा, तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स आपको मिल रहे हैं 28, ठीक है, सिंपल था। तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स ही पूछा था, तो कितना आएगा 28। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आपको पूछा है इज 9720 अ परफेक्ट क्यूब, क्या 9720 एक परफेक्ट क्यूब है, यस और नो, ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अगर वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपको ये ढूंढना है कि कौन सा नंबर ऐसा होगा, कौन सा नंबर ऐसा होगा जिससे डिवाइड करने पे वो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये जानने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, तो ये जानने के लिए हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 9720 का, ठीक है। तो 9720, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 1 7 17, तो 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 6 ज़ा 12, 0 अगेन, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, ठीक है। अगेन 2 से ही करूँगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। चलो 1 2 1 5 आ चुका है, अभी 5 से करते हैं। 5 2s are 10, 21, 5 4s are 20, 5 3s are 15, ठीक है। 243, तो 3 से शुरू करते हैं। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो यहाँ पे मेरा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो पूरा हो चुका है। अब मुझे बोला है कि इज़ 9720 अ परफेक्ट क्यूब, तो अगर वो परफेक्ट क्यूब कब होगा बेटा, जब पेयर मिलेगा 3 का। तो देखो ये 2 का पेयर कंप्लीट है, तीनों आ गए, 5 अकेला है और यहाँ पे भी 3 का पेयर कंप्लीट है, तीनों आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या एक्स्ट्रा है, 5 एक ही है और 3 2 है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा होने की वजह से ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज 9720 अ परफेक्ट क्यूब, क्या आंसर आएगा बेटा, नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, तो आप लिख सकते हो 9720 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। तो अगर आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो आपको इसको इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी परफेक्ट क्यूब है और ये भी परफेक्ट क्यूब है। तो किससे डिवाइड करना है बेटा, 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो 9 5 ज़ा 45, तो देयरफॉर इट शुड बी डिवाइडेड बाय 45 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर आपने इसको 45 से डिवाइड किया है तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है कि द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:5। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है, कितना दिया है बेटा, जो रेशियो है वो आपको दिया है 1:5। फाइंड द, क्या पूछा है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन ढूंढना है। नंबर ऑफ साइड्स n का एक ही फॉर्मूला है, क्या, 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल मिल गया तो आप नंबर ऑफ साइड्स n बता सकते हो। तो अब मुझे पहला जो मेरा टारगेट है वो क्या है बेटा, एक्सटीरियर एंगल ढूंढना। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटीरियर एंगल को ही x ले लेता हूँ। तो लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x, ठीक है।
तो द रेशियो बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल इज 1:5। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल दोनों का रेशियो क्या है 1:5। तो देयरफॉर आपको इंटीरियर एंगल कितना मिलेगा बेटा 5 टाइम्स है, यानी 5x मिल गया है बेटा। ठीक है, अब दोनों का सम एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम हमेशा 180 होता है। तो नाउ x plus 5x is equal to 180 degree, therefore 6x is equal to 180 degree, therefore x is equal to 180 degree divided by 6, 6 3s are 18 और 0, therefore x is equal to 30 डिग्री। आपको x की वैल्यू क्या मिल गई है 30 डिग्री। x क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल, तो therefore exterior angle is equal to 30 डिग्री। ठीक है, तो चलो नंबर ऑफ साइड्स n कितना होगा 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो 0 0 कट। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो देयरफॉर n नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आपकी बेटा नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ चुकी है, तो नंबर ऑफ साइड्स आ चुकी है 12। कितनी साइड्स है पॉलीगॉन की 12 साइड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला है इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली कर सकते हो। 17 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 15 इंटू 3x प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है और बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। चलो एक एक करके 17 2s are 34x प्लस 17 7s are, चलो 17 7s are कितना होता है, तो 17 7s are होता है 119 इज इक्वल टू 15 3s are 45x प्लस 15 5s are, 15 5s are कितना होगा 15 4s are 60, 15 5s are 75। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, इसको इधर ले आओ बेटा तो ये माइनस हो जाए, इसको उधर ले जाओ तो ये भी माइनस हो जाए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 45x माइनस 34x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिलेगा 119 तो पहले से ही था, ये 75 इधर आके क्या हो जाएगा -75। तो 6 ये और 5 ये, तो 11x इज इक्वल टू, ये होगा 25 और 19। ठीक है, तो 25 और 19 कितना होगा, तो 25 35 45 माइनस 1 44, तो आपको 11x की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा 44। तो x कितना होगा, x हो जाएगा आपका 44 डिवाइडेड बाई ये 11 नीचे आके डिवीजन में चला जाएगा, 11 4 जा 44, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो इक्वेशन को तो आपको x की वैल्यू 4 मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला है 14th नंबर के क्वेश्चन में 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कम बाय कार। ठीक है, तो 2/5 ऑफ टोटल, ठीक है, किससे आते हैं बेटा, कार से आते हैं। ठीक है, और while 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स कम बाय बस टू स्कूल। ठीक है, 1/4 ऑफ टोटल, 1/4 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कम बाय बस, ये किससे आते हैं बेटा, बस से आते हैं। ऑल द अदर वॉक टू द स्कूल ऑफ विच 1/3 वॉक ऑन देयर ओन एंड द रेस्ट आर एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स। अब इसके अलावा जो भी बचा, ठीक है, इसके अलावा जो भी बचा, ठीक है, अगर मैं टोटल को x ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 2/5 ऑफ टोटल कम बाय कार, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो
जब इसका इक्वेशन बनाते हो तो 2/5 ऑफ मतलब इनटू, ठीक है, ये कार्ड से आते हैं तो आप कार्ड से आने वाले कितने बोल सकते हो, देयरफॉर 2x/5, ठीक है, बाई कार, ये कार्ड से आते हैं, ठीक है। और क्या बोला है बेटा, 1/4 ऑफ टोटल बाई बस, तो 1/4 ऑफ का इनटू और टोटल x ले लिया इज इक्वल टू बस। तो बस से आने वाले बच्चे कितने हैं बेटा, तो बस से आने वाले बच्चे हैं x/4, ठीक है, बस से आने वाले x/4, कार्ड से आने वाले 2x/5। जितने भी बचे, इसके अलावा जितने भी बचे वो क्या करते हैं, वो चल के आते हैं, और जो चल के आते हैं उसमें से 1/3 walk on their own and the rest are escorted by the parents. If 224 students come to school walking on their own, कितने बच्चे खुद चल के आते हैं, 224 of students come to school walking on their own. How many students are there, मतलब study in that school, ठीक है। तो अब जितने बचे, टोटल बच्चे x है, उसमें से जो कार से आते हैं और जो बस से आते हैं वो माइनस कर दोगे तो आपको जितने बच्चे चल के आते हैं वो मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कार से कितने आते हैं 2x/5 और बस से कितने आते हैं x/4, तो जो वॉक करके आते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that come by walking, जो चल के आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, तो टोटल x था उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करना है, तो फर्स्ट जो कार से आते हैं 2x/5 और माइनस अगेन कर दो जो बस से आते हैं x/4, ठीक है। तो यहाँ पे सब में से x कॉमन निकल जाएगा, इधर आएगा 1 माइनस इधर आएगा 2/5 माइनस इधर आएगा 1/4, ठीक है। तो ये क्या करोगे आप, x 5 1 5 माइनस 2 3/5 माइनस 1/4, ठीक है। तो x इंटू ये होगा 4 3 12 माइनस 5 1 5 बाई 5 4 20, तो विच इज़ इक्वल टू x 12 माइनस 5, 12 में से 5 गया तो 7/20। तो इतने बच्चे बेटा चल के आते हैं। तो वॉकिंग वाले कितने हैं, 7x/20। अब ये जितने भी बच्चे चल के आ रहे हैं 7x/20, उसमें भी बाइफर्केशन है, क्या, 1/3 वॉक ऑन देयर ओन एंड द रेस्ट आर एस्कॉर्टेड। तो ये जितने भी बच्चे हमारे पास आए उसमें से खुद चल के कितने आते, ऑन देयर ओन 1/3। तो वॉकिंग ऑन ओन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ किसका, 1/3 7x/20, ठीक है। तो ये होगा 7x/60, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं 7x/60 ये क्या करते हैं बेटा, ये खुद चल के आते हैं और इसका नंबर आपको दिया है, ठीक है। एंड द रेस्ट आर एस्कॉर्टेड। 224 कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन। तो 224 बच्चे ऐसे हैं जो खुद चल के आते हैं और उसका नंबर क्या है, 7x/60। तो आप बोल सकते हो कि 7x/60 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारा, 224। तो x की वैल्यू आ गई 224 इंटू 60 अपॉन 7, 7 3 21, 7 2 14। तो कितना आया बेटा, 32 इंटू 60। तो आप कर दो 32 इंटू 60 का 6 कर देता हूँ, 6 2 12, 6 3 18 और 19। तो 192 के पीछे एक ज़ीरो लगाना है, x इज इक्वल टू 1920, ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं बेटा जो स्कूल में हैं, तो टोटल बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 1920। तो सम इजी था बट थोड़ा आपके लिए
वैल्यू घुमा फिरा के दी हुई थी, तो अगर आप अच्छे से समझ के करते बेटा तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है इन अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट बैंक्स इज गिवन बिलो। आपको एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग ब्रांचेस दी हुई है, ठीक है, गिवन बिलो है अलग अलग बैंक की। SBI की कितनी है 30, बैंक ऑफ बड़ौदा की कितनी है 17, पंजाब नेशनल बैंक 15 और कैनरा बैंक की 10। आपको क्या करना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पहले तो टोटल बनाना पड़ेगा। तो टोटल कितना है बेटा, टोटल ब्रांचेस 30 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 10। तो अगर आप ये देखोगे तो 30 और 17 47 और 5 52 62 और 10 72। तो टोटल जो ब्रांचेस है वो है 72। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो, ठीक है, और फिर सेंट्रल एंगल ढूंढ सकते हो। ये जो टोटल 72 ब्रांचेस है, मैं बेटा उसको साइड में ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये जो है टोटल ब्रांचेस हमारी 72 है, उसको हम लोग साइड में यहाँ पे कहीं पे ले जाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ये रहा, हमारे पास टोटल ब्रांचेस कितनी हो गई बेटा 72 हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो आगे मैं यहाँ पे ही नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, फिर पाई चार्ट आगे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। तो फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा, फ्रैक्शन आएगा 30 आउट ऑफ 72। ठीक है, फिर इसका क्या आएगा 17 है तो 17 आउट ऑफ 72। फिर इसका फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा 15 आउट ऑफ 72 और इसका फ्रैक्शन क्या आएगा बेटा 10 आउट ऑफ 72। इसके बाद आपको निकालना है सेंट्रल एंगल। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल होगा आपका, सेंट्रल एंगल में कुछ नहीं करना है आपको, इसको ही 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो 30/72 इंटू 360 डिग्री, 36 1 ज़ा 36 2 ज़ा। ठीक है, तो ये इधर 10 आ चुका है और 15 2 15 ज़ा 30, तो 15 इंटू 10, इसका सेंट्रल एंगल कितना आएगा बेटा 150 डिग्री। नेक्स्ट इसका सेंट्रल एंगल 17/72 इंटू 360 डिग्री, 1 ज़ार और 36 2 ज़ा। ठीक है, अगेन ये 2 5 ज़ा 10, 17 5 ज़ा कितना आ गया 85 डिग्री। आप देखोगे तो डायरेक्टली 72 5 से 360 हो रहा है, तो इसका सेंट्रल एंगल होगा 15/72 इंटू 360 डिग्री, 72 5 ज़ा 15 5 ज़ा 75 डिग्री और इसका हो रहा है 10/72 इंटू 360 डिग्री, 72 5 ज़ा और ये कितना हो रहा है 50 डिग्री। ठीक है, ये आपका सेंट्रल एंगल हो रहा है 50 डिग्री। तो अभी टोटल है, टोटल 360 होना चाहिए, तो 150 50 200 और 85 75 160 200 160 360। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल सभी का मिल चुका है। क्या सेंट्रल एंगल है 150 85 75 और 50 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, पाई चार्ट बनाना है। तो मैं आपके लिए पाई चार्ट बना देता हूँ। तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले आपको एक सर्कल ले लेना है। ठीक है, तो पहले एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, और इस सर्कल में, इस सर्कल के अंदर बेटा आपको क्या करना है, तो इस सर्कल के अंदर आपको, इस सर्कल के अंदर आपको अलग अलग वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, अभी जब आप इसका सेंटर देखते हो, ठीक है, तो इसका जो सेंटर है वो ये है, तो आपको एक एक करके यहाँ से डिग्री बनानी है। तो जैसे कि अगर आप SBI पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका है 150 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, तो ये आ जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं शॉर्ट में SBI लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला है बेटा, सेकेंड 85 बैंक ऑफ बड़ौदा, तो 85 मतलब ऑलमोस्ट 90 जितना ही। ठीक है, यहाँ पे 90 होता तो मैं यहाँ पे 85 बना रहा हूँ। ठीक है, 85 किसका है बेटा,
तो 85 है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट में BOB, ठीक है। फिर 2 है, ठीक है, ये कितना है बेटा SBI 150 डिग्री। नेक्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा 85 डिग्री, बैंक ऑफ बड़ौदा 85 डिग्री। उसके बाद जो थर्ड है वो है पंजाब नेशनल बैंक, मैं PNB लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका है 75 डिग्री। और लास्ट ये जो है कैनरा बैंक, उसका है 50 डिग्री। तो ये है कैनरा बैंक, ठीक है, 50 डिग्री, ठीक है। ये सेंट्रल एंगल यहाँ पे 50 डिग्री आएगा और यहाँ पे सेंट्रल एंगल आएगा 75। आपको ये सारे एंगल्स प्रोटेक्टर की हेल्प से एकदम प्रॉपरली लेने हैं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। एरिया कितना दिया है बेटा? एरिया 101, एरिया है 101 1/400। प्लॉट कैसा है बेटा? स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, ठीक है। तो अगर मैं साइड को x ले लेता हूँ, ठीक है, लेट साइड ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x, ठीक है। आपने क्या किया बेटा? प्लॉट की साइड को x ले लिया, तो एरिया कितना होगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 101 1/400, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। अब ये बेटा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। 101 इंटू 4, 404, 2 बार 0। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई +1 होगा और नीचे अपॉन 400 आएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 40401/400, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? तो नेक्स्ट आपको ये x स्क्वायर की वैल्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ वन साइड, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x स्क्वायर से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो x हो जाएगा √40401 डिवाइड बाई 400, ठीक है। डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40401। फिर मैं क्या करता हूँ? मैं 2 के पैर बना लेता हूँ। तो ये 2 का पैर, अगेन ये 2 का पैर और ये एक पैर। पहला तो क्या नंबर आएगा? 2, तो 2 2s are 4 -0, ठीक है। ये 2 नीचे आके ऐड होके 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक खाली जगह बची है और ये 04 नीचे आ गया। तो 4 यहाँ पे 0 और 0 ही लेना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 4 बचा है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, 0 ऐड होके यहाँ पे 4 0, एक यहाँ पे जगह बची है, एक यहाँ पे बची है और नीचे आ रहा है 0 1। तो अगर आप 1 और 1 पुट कर दो तो यहाँ पे 401 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 40401 का रूट कितना आ रहा है? 201। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है 201 और नीचे 400 का रूट, तो 4 का 2 और 100 का 0। तो आपको साइड कितनी मिल गई बेटा? आपको साइड मिल गई 201/20। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 201/20, 20 10s are 200, 10 1/20 मीटर, ठीक है। तो आपको आपकी जो साइड है वो मिल जाएगी 10 1/20 मीटर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला है द एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब बाजू बाजू के एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब आप बोल सकते हो बाजू बाजू के एंगल। कितने दिए बेटा? 2x - 4 एंड 3x - 1, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको सारे
एंगल्स ढूंढने हैं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD, ठीक है। अब अगर ये A और B एडजेसेंट एंगल्स है तो ये जो है वो को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम 180 होगा। तो नाउ आप बोल सकते हो 2x - 4 प्लस 3x - 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 3x 5x - 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5, तो 5x इज इक्वल टू 185 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 3s are 15 और 35। तो आपको बेटा x कितना मिलेगा, 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब एक एक करके एक वैल्यू ढूंढेंगे। पहला एंगल A कितना है बेटा, 2x - 4, 2 × 37 - 4, 37 का डबल 74 -4 कितना आ गया बेटा, 70 डिग्री। अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको पता है। तो अगर एंगल A 70 डिग्री है तो एंगल C भी कितना होगा, 70 डिग्री, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट कौन सा ढूंढना है, B ढूंढना है। X की वैल्यू तो है मेरे पास 37 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू 3x - 1, 3 × 37 - 1, 30 30 30 90 और 21, तो ये आएगा 111 - 1 कितना आया बेटा, 110 डिग्री। कौन आया, एंगल B। पर B और D दोनों सामने सामने हैं तो एंगल D भी कितना आएगा, 110 डिग्री, ठीक है। तो आपने चारों एंगल्स ढूंढ लिए हैं, ठीक है। एंगल B और D कितना है बेटा, 110 डिग्री, और एंगल A और C दिख रहा होगा आपको, एंगल A और C कितने हैं, 70 और 70 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले इसको यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 2 - y -5 × y + 6 इज इक्वल टू 10 × 1 - 3y। तो ये हो जाएगा 15 2s are 30 -15y -5 × y -5y -5 6s are 30 is equal to 10 1s are 10 -10 3s are 30y। चलो 30 और -30 कैंसिल आउट हो रहा है, -15 -5 -20y इज इक्वल टू 10 -30y। -30y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30y -20y इज इक्वल टू 10। 30y -20y 10y इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। आपको बेटा y की क्या वैल्यू मिल रही है, तो आपको y की वैल्यू मिल रही है 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और क्या बोला है आपको बोला है गिवन बिलो इज अ पाई चार्ट। आपको एक पाई चार्ट गिवन है शोइंग द टाइम स्पेंड बाय अ ग्रुप ऑफ 350 चिल्ड्रन। टोटल कितने चिल्ड्रन है बेटा, 350 चिल्ड्रन। अलग अलग गेम्स में जो बच्चे हैं वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो बताया है। आपको इस पाई चार्ट को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ए, हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड एट लीस्ट 1 आवर इन प्लेइंग गेम्स। एट लीस्ट 1 आवर, एट लीस्ट 1 आवर मतलब कम से कम 1 आवर। अगेन एट लीस्ट 1 आवर मतलब कम से कम 1 आवर, मतलब 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर और 5 आवर, सबका एडिशन, ठीक है। अभी आपको बोला है, चलो तो आपको यहाँ से किस किस को ऐड करना है, तो देखो 1 आवर यानी ये वाला 16, फिर 2 आवर्स तो ये लाइन वाला 30, फिर 3 आवर्स प्लेन 34, 4 आवर्स ट्राइंगल 10
और 5 आवर्स ये जो लाइनिंग वाली पैटर्न दिख रही है 4 उसको, ठीक है। तो आपको क्या छोड़ना है, तो आपको बस ये वाली पैटर्न लेस देन 1 वाली छोड़नी है जो कि 6% है। तो अगर आप देखो कि एटलीस्ट 1 आर यानी या तो 1 या 2 3 4 5 आर कुछ भी, तो उसमें देखोगे तो पूरे 100% में से 6% ही लेफ्ट है। तो कितने हो रहे बेटा 94%। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम 1 आवर गेम खेलते हैं, 94% है, ठीक है। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन पूछा है आपको, परसेंटेज नहीं पूछा है। तो 94%, ए का आंसर है आपके, ए का आंसर है 94% ऑफ कितने का 350 का। तो ये होगा 94/100 इंटू 350। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। तो आपका आंसर आ रहा है 47 इंटू 7, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है। 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28, कितना आ रहा है बेटा 329 चिल्ड्रन। ए में कितने आ रहे बेटा 329 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ मतलब मिनिमम 1 आवर खेलते हैं, ठीक है। सेकेंड, हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड मोर देन 2 आवर्स इन प्लेइंग गेम। मोर देन 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स का मतलब क्या, मोर देन 2 आवर्स मतलब 2 आवर्स से ज़्यादा, यानी या तो 3 आवर या 4 आवर या 5 आवर। तो आपको इसका परसेंटेज देखना है। 3 आवर 34, 4 आवर 10 और 5 आवर्स 4, ठीक है। तो अभी आपको इसका एडिशन करना है, रुको पहले पूरा ही क्लियर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना। मोर देन 2 मतलब 3 4 5, ठीक है। 3 यानी ब्लैंक 34, 4 मतलब ट्रायंगल 10, 5 मतलब लाइनिंग पैटर्न 4। तो देखो ये टोटल कितना हो रहा है 34 और 4, 38 और 10 48, ठीक है। 34 4 38 और 10 48% ऐसे हैं जो मोर देन 2 आवर्स खेलते हैं, यानी 3 4 और 5। तो आपका आंसर कितना है 48%। तो बी का आंसर लिखते हैं 48% ऑफ 350। तो ये होगा 48/100 इंटू 350। 0 0 कट, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 24 इंटू 7 करोगे तो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम या तो 2 आवर से ज़्यादा खेलते हैं, मोर देन 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने सॉल्व कर दिया है और कितने बच्चे आ रहे हैं 168 बच्चे, ठीक है। थर्ड, हाउ मैनी चिल्ड्रन स्पेंड 3 और लेस। 3 और लेस का मतलब या तो 3 या उससे कम। तो 3 और लेस में कौन कौन आएगा, तो 3 और लेस में 3 2 1 और लेस देन 1 आएगा। चलो 3 वाले कितने 34, 2 वाले कितने, तो 2 वाले ये रहे 30, फिर 1 वाले कितने 16 और लेस देन 1 वाले कितने 6। तो टोटल कर दो बेटा 34 और 6 40, 40 और 30 70 और 16 86%, ठीक है। 86% बच्चे ऐसे हैं जो 3 आवर्स या उससे कम खेलते हैं। तो थर्ड सी का आंसर है, सी का आंसर है 86%। तो सी 86% ऑफ 350 विच विल बी 86/100 इंटू 350। 0 से 0 कट, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 4 ज़ा 8, 3 43 इंटू 7। तो 7 3s आर 21, 1 2 कैरी 28 और 2 30। कितने बच्चे हो रहे बेटा 301 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो या तो 3 आवर्स खेलते हैं या 3 आवर्स से कम खेलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, विच इज़ ग्रेटर, कौन सा ज़्यादा बड़ा है,
नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड 2 आवर्स और मोर पर डे, यानी कि मोर देन 2 आवर्स, ये वाला ऑप्शन क्या बोला है, कौन सा ज़्यादा है, हु स्पेंड 2 आवर्स और मोर, तो मोर देन 2 आवर्स, 2 आवर्स भी है बेटा पर इसमें इंक्लूडेड है, तो 2 आवर्स और मोर का एक काउंट करना है, ठीक है। और सेकंड पूछा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले फॉर लेस देन 1 आवर, ठीक है। तो चलो लेस देन 1 आवर का कितना है, यहाँ पे ही डायरेक्टली हो जाएगा ये वाला, तो क्योंकि हमें नंबर नहीं ढूंढना है तो हम परसेंटेज से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो हु स्पेंड 2 आवर और मोर, 2 आवर और मोर वाले कितने हैं, तो 2 आवर और मोर में या तो 2 आवर मोर मतलब 3, 4 और 5, तो अगर आप टोटल आउट करोगे तो 2 आवर 30, मोर देन 2 आवर यानी 3 आवर 34, 4 आवर 10 और 5 आवर्स 4, ठीक है। तो 2 आवर्स और मोर वाले हैं 30 और 34, 64 और 10, 74 और 4, 78%, ठीक है। तो पहले का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर है 30, 34, 64, 68 और 10, 78%। दूसरा है लेस देन 1 आवर, लेस देन 1 आवर यानी कि ये वाला पैटर्न है, यानी कि 6%, ठीक है। तो देखो बोला है विच इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है ना 78%, तो हु स्पेंड 2 आवर्स और मोर ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड 2 आवर्स और मोर इज ग्रेटर, वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बोला है फाइंड द क्यूब रूट, आपको इसका क्यूब रूट ढूंढना है, किसका, -39304 अपॉन -42875। अब ये ऊपर नीचे माइनस है तो ये कट के प्लस हो जाएगा। अब आपको सिर्फ इनका क्यूब रूट ढूंढेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 39304। स्टार्ट करता हूँ 2 से, 2 1s are 2, 1 9, तो 2 9s are 18, 1 3 2 6s are 12, 1 0 5s are 10, 2s are 2 9s are 18, 1 6 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 1s are और 2 3s are। अब हमारे पास क्या आया है 4913, तो 4913 जो है वो 17 का क्यूब होता है। तो अगर आप 17 से करोगे तो पहले तो 289 आएगा, फिर अगेन 17 से करना है तो 17 आएगा, और अगेन 17 से करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 2 का पैर और 17 का पैर हो चुका है, तो आप लिख सकते हो कि 39304 जो है वो 17 2s are 34, ठीक है, 34 का क्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा 42875, तो 5 से शुरू करते हैं, 5 8s are 40, 28 तो 5 5s are 25, 37 तो 5 7s are 35, 5 5s are 25, अगेन 5 1s are 5, 35, 5 7s are 35, 5 1s are 5 और 2 5 तो 5 5s are 25, अगेन 5 3s are 15, ठीक है, 2 1 5 4s are 20, 1 5, 343, तो 343 आपको पता होगा 7 का होता है क्यूब, 7 4s are 28, 7 9s are 63, 7 7s are 49, 7 1s are 7, तो 7 और 5, 7 5s are 35, तो 42875 है, 5 और 7 35 का क्यूब। अब आपको क्या बोला है फाइंड द क्यूब रूट,
क्यूब रूट मतलब आपको इसका क्यूब रूट निकालना था, तो थर्ड रूट क्यूब रूट ऑफ, ये क्या है ऊपर वाला 34 का क्यूब, नीचे वाला क्या है 35 का क्यूब, तो आपका आंसर आएगा 34/। तो आपको जो क्यूब रूट निकालना है वो क्या होगा 34/35। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 3 × y - 5 और -4 4 ज़ा 16y अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 3 2 ज़ा 6 माइनस ब्रैकेट में y - 3 और अपॉन में 2, ठीक है। तो ये होगा 3y - 3 5 ज़ा 15 माइनस 16y अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 माइनस y माइनस माइनस प्लस 3/2, 2 2 ज़ा 4, ये कट हो रहा है। 3y - 16y, तो 3 - 16 माइनस 13y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 6 + 3 9 माइनस y/1, ठीक है। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा -13y - 15 इज इक्वल टू 2 × 9 माइनस y, -13y - 15, 9 2 ज़ा 18 माइनस 2y, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लाके प्लस कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लाके माइनस कर देता हूँ। तो ये इधर गया तो क्या करेंगे, या इसको यहाँ पे ला भी सकते हैं। तो -13y + 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 था, ये -15 को इधर भेज के प्लस कर दो, ठीक है। तो -13 + 2 -11y, 18 और 15 28 और 5 33, ठीक है। तो -11 3 ज़ा 33 माइनस y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू, तो आपको मिलेगा 21 का आंसर y इज इक्वल टू -3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न ₹160, उसको टोटल कितने पैसे मिले बेटा 160 रुपीज़। आगे क्या बोला है, ही स्पेंड दिस मच 26 3/5 ऑन टी एंड स्नैक्स, 50.5 ऑन फूड एंड 16 2/5 ऑन रिपेयर्स, तो हाउ मच ही सेव ऑन दैट डे। तो उसने टोटल जितने कमाए थे 160, उसमें से जितने यूज़ किए हैं वो सारे आपको माइनस कर देने हैं, तो आपको रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो कितने उसने यूज़ किए हैं, तो फर्स्ट उसने यूज़ किया है 26 3/5 स्नैक और फूड पे, प्लस 50.5 फूड पे और 16 2/5 रिपेयर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा, तो -26 5 मिलेगा आपको 130 और 3 133/5 प्लस 50 2 ज़ा 100 और 1 101/2 प्लस 16 5 ज़ा 80 और 2 82/5। इन दोनों के अंदर जो है बेस वो सेम है, तो इनको वापस साथ में लिख देते हैं। ये होगा 160 माइनस 133/5 प्लस 82/5 प्लस 101/2, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 133 प्लस 82, ठीक है। तो 133 और 82, 5 8 एंड 3 11 215, ठीक है। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 215/5 प्लस 101/2, 2 5 4s आर 20, ठीक है, और 5 3s आर 15। तो ये होगा 160 माइनस 43 प्लस इसको 101/2 50.5 को 50.5 ही लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 160 माइनस 50 और 40 93.5,
ठीक है, तो आपको करना है 163 में से 93.5 माइनस, तो ये होगा 60 प्लस ये होगा 6.5, तो दैट इज 66.5। तो उसके पास बेटा कितने रुपीस बचे हैं एट द लास्ट, तो आप बोल सकते हो कि उसके पास 66.5 रुपीस बचे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सॉल्यूशन फिनिश होता है बेटा। थैंक यू सो मच।